آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، آپ سب کو میں ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ دیوبندیوں نے اپنی کتاب حفظ الایمان کو چینج کر دیا ہے، عبارت کو بدل دیا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا جو اہل سنت کا عقیدہ ہے الحمدللہ وہی حق ہے۔ ہم نے جب یہ دیکھا کہ ان دیوبندیوں نے حفظ الایمان کی اس عبارت کو چینج کر دیا، بدل دیا، تو میں نے جمشید بھائی کو کال کیا اور میں نے ان کو بتایا۔ پھر ہم نے ایک دیوبندی عالم جس کا نام ہے عارف حقانی ندوی، عارف حقانی اپنے آپ کو بولتا ہے، ندوۃ العلماء سے وہ فارغ ہے، ندوہ کا پڑھا لکھا ہے شاید۔ تو ہم نے اس کو جب لائن پر لیا تو اس سے جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس شخص سے آپ ہماری پوری گفتگو سنیں۔ میں نے اس میں حوالے بھی لگا دیے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے پرانا اور نیا ایڈیشن لگا دیا ہے، پھر ہم نے اس سے گفتگو کی ہے۔ آپ اس گفتگو پورا ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم جمشید بھائی۔ وعلیکم السلام حضرت، خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ جی فرمائیے۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا حضرت جی کہ دیوبندیوں نے حفظ الایمان کی جو عبارت ہے جی اس میں چینجنگ کر دی، تبدیلی کر دی۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں کب؟ بھائی میرے پاس آج ہی ایک بھائی نے پورا ثبوت بھیجا ہے اور یہ حوالے میں آپ کو بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ ان کو پڑھ لیجئے۔ اور اس میں ترمیم یہ کی گئی ہے، چینجنگ یہ کی گئی ہے کہ پہلی والی جو کتاب ہے اس میں لکھا گیا کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علم غیب یا مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے؟ سمجھے حضرت؟ سن رہا ہوں۔ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ جی معاذ اللہ۔ سمجھے حضرت؟ جی پھر انہوں نے اس کے آگے یہاں یہ چیز لکھی ہے کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے سے مخفی ہے نا، دوسرے شخص سے مخفی ہوتا ہے، یعنی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ سمجھے حضرت؟ تو مطلب انہوں نے اپنے مصنف کی کتاب میں تحریف لکھی ہے؟ انہوں نے مان لیا کہ ہاں یہ عبارت گستاخی پر مبنی ہے، گستاخی ہے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے مصنف کی کتاب میں لکھی ہوئی خود کی تشریح کری ہے نا؟ ہاں اس کو تبدیل کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے مصنف کی کتاب میں جو اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے جس میں اس نے 1800 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، جی، تو اس میں سے انہوں نے تشریح کری ہے خود، مطلب انہوں نے یہ مان لیا کہ یہ عبارت کفری ہے، تبھی تو اسی کتاب پہ تشریح کی نا، جیسے تقویۃ الایمان میں انہوں نے تشریح کی ہے۔ جی بالکل وہی سیم ہے۔ تقویۃ الایمان میں بھی تو انہوں نے عبارت بدل دی ہے نا کہ ایک دن میں بھی مر کے مٹی میں مل جاؤں گا، معاذ اللہ، اس کو بدل دیا ہے نا تھوڑا سا۔ ہاں انہوں نے بدل دیا۔ اب یہ لکھا ہے، پہلے لکھا ہوا تھا معاذ اللہ حضور کی طرف ایک جھوٹ بولا کہ معاذ اللہ حضور نے گویا ایسا فرمایا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، جی، تو کب سجدے کے لائق ہوں۔ اب لکھا ہے معاذ اللہ کہ ایک دن میں بھی آگوش لحد میں جا سوؤں گا۔ جی بتائیے، وہاں یہ ترمیم کی، اب اس حفظ الایمان کی اس عبارت میں یہ ترمیم کی، اس چیز کو بدلا کہ یہاں پہ جو جانوروں، پاگلوں، درندوں کا نام ہے نا، یہ بالکل ختم کر دیا۔ تو یہاں پہ یہ ثابت ہو گیا نا، مبارک ہو اہل سنت والجماعت کو، کتنے دن سے جو جھگڑا ہمارا چل رہا تھا کفریہ ہے جی، آخرکار دیوبندیوں نے اس کو بدل کے مان ہی لیا کہ یہ عبارت کفریہ ہے۔ بے شک۔ تو اب اس پہ جب انہوں نے تبدیلی کی ہے تو ان کے اوپر توبہ بھی لازم ہے، بالکل، اور جن کا جو نکاح پہ ہے ان کو تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا۔ ارے تو یہ مسلمان ہی کب ہیں، بعد میں سب کچھ کریں۔ ہاں، تو اب تو ان پہ توبہ لازم ہے نا، اب تو انہوں نے مان لیا نا یہ کفریہ عبادت ہے، تو جی کو لات مار کے مسلمان کیوں نہیں بن جاتے؟ جی بے شک۔
उसका रीजन ये है ना हजरत, क्यों नहीं बनना चाहते, मैं बताऊं आपको रीजन क्या है। जी रीजन ये है, जो अंग्रेजों के साथ मिलके इन्होंने मेहनत करी है ना अशरफ अली थानवी के नाम पे जो अब तक खाया है माल, जी, समझ रहे, वो माल बंद हो जाएगा। अरे अरे हाँ। इस किताब के रेट भी बढ़ा दिए। हाँ इसलिए अरे मैं 10 रुपए की लेकर आया था, 30 रुपए की लिख रहा है इस पे। तो वो तो कोई बात नहीं, महंगाई को देखते हुए रोजी रोटी नहीं चल रही है ना, तो इसने बढ़ा दिया होगा। अरे यार ओफो, मैं 10 रुपए की किताबें लेकर आया था, 2 किताबें 20 रुपए की, एक हिफ्जुल ईमान, एक तहजीरुन नास। चलिए बहरकैफ, ये तो बहुत गंभीर मसला है, तो इस पे एक मुफ्ती से बात की जाए। हाँ हाँ बिल्कुल की जाए, लीजिए किसी मुफ्ती को, किसी आलिम को। सुनिए, इस आलिम से की अच्छा जाए, एक मिनट, मैं वो इबारत भी आपको बता दूं जो इन्होंने तरमीम की है, बात क्लियर हो जाए। देखिए अब इस किताब में क्या लिखा है, दोबारा से जो ये नई शाये हुई है, इन्होंने लिखा है कि फिर ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर आलिमुल गैब का इतलाक किया जाना, उसमें है कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना। यहाँ लिखा है आलिमुल गैब का इतलाक किया जाना, बताइए कितना फर्क है। अच्छा अब दूसरी बात, फिर यहाँ लिखा कि अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तरफ ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ इल्म गैब या मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तख्सीस है। उस वाली किताब में इसके बाद यह है कि ऐसा इल्म गैब तो माअल्लाह ज़ैद व अमर बल्कि हर सभी व मजनून बल्कि जमी हैवानात बाहिम के लिए भी हासिल है। यानी ऐसा इल्म गैब तो जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों के लिए भी हासिल है माअल्लाह। वो पूरा ही जुमला खत्म कर दिया। अब यहाँ ये लिखा है, इसके बाद लिखा है कि हुजूर की ही क्या तख्सीस है, मुतलक बाज़ उलूमे गैबिया, ठीक है। इसके बाद जानवरों का नाम हटा के यहाँ लिखा मुतलक बाज़ उलूमे गैबिया, समझे हजरत। बाज़ उलूमे गैबिया तो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम, यहाँ अंबिया इकराम को ला रहे हैं, वहाँ किसको लाए, जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों को, समझे। बिल्कुल हाँ, तो कह रहे हैं कि बाज़ उलूम गैबिया तो गैर अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भी, यानी गैर अंबिया यानी आम लोग, मेरे और तुम्हारे, समझे। हाँ, अंबिया इकराम का नाम ले रहे हैं कि गैर अंबिया, यानी जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों को हटा डाला जी। अब यहाँ गैर अंबिया का नाम जोड़कर, यानी आम लोगों को जोड़कर बच्चों का, पागलों का नाम हटा दिया। समझा मैं इसलिए रहा हूँ कि ताकि हमारे अहले सुन्नत के जो हजरात हैं वो जान लें, समझ लें कि इन्होंने तब्दीली कर दी है, हिफ्जुल ईमान का जनाजा निकल चुका है। जो आपने मुझे किताब भेजी है इसमें तो साफ इन्होंने लिख दिया है हाँ, कि बाज़ उलूमे गैबिया, बाज़ उलूमे गैबिया जो यहाँ पे जो उन्होंने लिखा है, हाँ बाज़ उलूमे खैर आगे की मैं बात पढ़ के बताता हूँ हजरत। अल्लाह अकबर। गैर अंबिया अलैहिस्सलाम को भी, हाँ गैर अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भी हासिल है, तो चाहिए कि सबको आलिमुल गैब कहा जाए। फिर अगर ज़ैद इस पर, ज़ैद इसका इल्तिजाम कर ले, मतलब इन्होंने सारा कुछ ज़ैद पे डाल दिया। हाँ सारा कुछ ज़ैद के ऊपर डाल दिया, पूरा मसला। अरे शैतान थानवी को, नूर भाई ये किताब शाया हो चुकी है ना। हाँ अरे हजरत हो चुकी है, मैंने तभी तो आपको भेजी है। पहले ये देखो छपी कहाँ से है। हाँ वही तो अब मैं तुमको बता रहा हूँ। अरे मैंने पैसे देख के मैं तो घबरा गया, मैंने कहा यार 10 रुपए की मिलती थी ये तो इसको मोटा कर दिया ना। एक मिनट, तस्वीर बढ़ा दी ना इसमें। अल फुरकान बुक डिपो से छपी है ये। अल फुरकान बुक डिपो दिल्ली हाँ, नजीराबाद लखनऊ। नजीराबाद लखनऊ, जी हाँ। नदबतुल उलमा के शायद उलमा ने इसको छपवाया होगा। अरे साले को इसको मालूम होगा यार, आरिफ हकानी को लो लाइन पे। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आपने, आरिफ हकानी को लेते हैं। रुकिए पहले ये बात जो आपने हमारी हुई है, हाँ इसको रोकते हैं रिकॉर्डिंग को। नहीं रिकॉर्डिंग को मत रोको। आरिफ हकानी का नंबर दीजिए जरा मुझे। आरिफ का नंबर दूं? मैं करूं? हाँ आप करो, लेकिन आपका फोन कट जाएगा हजरत। हेलो, तो मैं आपको देता हूँ। आपने मुझे किया कि मैंने आपको किया है?
میں نے آپ کو کال کیا ہے. آپ نے مجھے کال کیا شاید. آپ نے کیا ہے کال. نہیں آپ ہی کا کال آیا ہے شاید. لائیے دیجیے. ہاں لیجیے. بولیے. 790 790 547 547 2554. ہو گئے نمبر پورے؟ مسلمانوں آخر کار انہوں نے دیوبندیوں نے مان ہی لیا کہ یہ کتاب حفظ الایمان. ہلو. ہاں جی بات کرو. عارف صاحب. ہیلو. جی نور حسن بول رہا ہوں. جی میں نے سنا ہے آپ کی ایک کتاب اور جو ہے حفظ الایمان شائع ہو چکی ہے. جی. حفظ الایمان کتاب آپ ارے کسی کے تعلق سے بات کرنے سے پہلے جو ہے میری بات سن لو. ابھی اس وقت میں مصروف ہوں. ٹھیک ہے. مصروف مت رہیے, بس 2 منٹ کا وقت چاہیے مجھے. نہیں میں مصروف ہوں نا. اچھا مصروفیت چالو ہو گئی آپ کی؟ جی. کتاب کا نام سنتے ہی مصروفیت چالو ہو گئی آپ کی؟ ارے یار میں تو مصروف تھا ہی پہلے سے. تو جب پہلے سے مصروف تھے تو کال اٹھایا آپ نے, کال ہی نہیں اٹھانا چاہیے تھا. ارے واہ کیا بات ہے یار, میں فون نہ اٹھاؤں. اچھا یہ بتائیے, فون تو اٹھانا ہی پڑے گا نا چاہے جتنی مصروفیت ہو. آپ کے دیوبندی علماء نے اور آپ کے دارالندوہ کے لوگوں نے. خاموش رہو, میں وقت دیتا ہوں نا آپ کو. آپ کو وقت دیتا ہوں, اس وقت بات کرو مجھ سے. ٹھیک ہے, اب 2 منٹ کی میں بات تم سے کہنا چاہتا ہوں, اس کا مطالعہ کر کے آنا. ایک نئی کتاب شائع ہوئی ہے آپ کے یہاں سے, حفظ الایمان, اور اس میں عبارت میں چینجنگ کی گئی ہے. ارے یار سنو نا میری بات سنو. بولیے. میں کہہ رہا ہوں کہ کل 11 بجے 11:30 بجے کے وقت آپ کال کریں. اچھا ٹھیک ہے, وہ تو کر ہی لیں گے. نور بھائی رکو نا. ہاں جانی صاحب جی. آپ جو ہمارے عالموں کو کال کر کے پریشان کرتے ہیں بار بار, تو آپ اپنا ٹائم دیکھتے ہیں کیا ٹائم دیکھ, میں تو 11 ہی بجے کا ملاتا ہوں. نہیں تو آپ دوسرے کو کیٹ کیسے لگاتے ہیں؟ جب آپ ہمارے عالموں کو کہتے ہیں نہیں بھاگنا نہیں, فون کاٹ کے تھوڑی بات کرو. تو نہیں ہم دیکھو میں کس وجہ سے کہتا ہوں, میں مختصر سے بات کر رہا ہوں. سنو مختصر نہیں, سنو, یہ کتاب آپ کی پتہ ہے آپ کو کہ شائع ہو چکی, آپ کو معلوم ہے, اس لیے آپ کو اس کتاب پہ جواب نہیں دینا, بھاگنا ہے. اچھا کون رائٹر ہے؟ میرے سامنے تو نہیں آئی. ارے حفظ الایمان کتاب میں ترمیم کی گئی ہے, چینجنگ کی گئی ہے اس عبارت کو. اس عبارت کو لے کے آپ ہمارے عالموں کی طرف گھوم رہے ہیں نا کہ نہیں یہ تو دیکھو میں اسی لیے گھوم رہے تھے کہ یار اب تو عبارت چینجنگ ہو گئی ہے. یہ اب نئی آڈیو. نور بھائی رکو. یہ کتاب چھپی ہے فرقان بک ڈپو لکھنؤ سے. جی. اچھا آپ سنو میری بات. وہ حفظ الایمان میں جو عبارت ہے اسی کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ ہاں بالکل. ایک منٹ نور بھائی رکو. ہاں اب سن لو نا, اب میں بتا رہا ہوں. یہی حفظ الایمان کی عبارت جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تغییر العنوان میں بھی جو ہے ترمیم کی تھی. کیونکہ جو ایسے آپ لوگ ہیں نا کہ جو ہے مفہوم بیان کرنے کے باوجود بھی مہربانی ہوگی ایک بار پرانی والی عبارت پڑھ دیجیے. جی ایک بار پرانی والی عبارت جو ہے میں وقت دیتا ہوں, آپ آئیے اس وقت مجھ سے بات کریے, میں بتاؤں گا. نہیں سنیے نا, ابھی پرانی والی کی عبارت پڑھ دیجیے. اس وقت ہمارے پاس کتاب نہیں ہے نا, سنائیں گے نا آپ کو. ابھی میں مصروف ہوں, اس وقت ہمارے پاس کتاب نہیں ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, جو شروع میں ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر ارے بات کرنا ہو تو آپ آئیے, میں وقت دیتا ہوں. گفتگو ہوگی نا. نہیں سنو, آپ بلاک کر دو گے میرا نمبر, مجھے معلوم ہے. اللہ الحمدللہ یہ سنی حنفی دیوبندی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کسی جو واقعتاً سنجیدگی کے ساتھ بات کرنے والا بندہ ہے, میں اس کا خارجی فون جو ہے اٹھاتا بھی ہوں اور ہمارے مولانا اشفاق کے پاس, کبھی تو فیل شمسی صاحب کے پاس گھوم رہے ہیں اس عبارت کو لے کر کے. جی عبارت بالکل صحیح ہے. اچھا آپ ہیں کون بتائیے. میرا نام جمشید علی قادری ہے. جمشید علی قادری.
ठीक है, आप जो मेरा नंबर ले लीजिए, ठीक है। नंबर तो आपका हमारे पास मौजूद है। हाँ ठीक है, तो आप जो कल 11 या 11:30 बजे के वक्त कॉल करिए, आपका भी बुखार इंशाल्लाह इसी इबारत पर उतार दूंगा। मुताला सही से करके आइएगा, ठीक ठाक के आइएगा। रुको तो सही, एक बार ये इबारत पढ़ो तो। कौन सी इबारत? आप जो बोल रहे थे दिन में तो आप पढ़ देते हो। अच्छा चलिए ठीक है, पढ़िए 1 मिनट। अब सुनिए, नूर हसन को लात मारो, उससे कह दो कि ना बोले, ठीक है ना? इबारत को पढ़िए। मुझसे जनाजा निकल रहा है तेरा क्या, या खौफ खा रहा है? नहीं बदला, फिर इसमें क्या बदला, फिर पहले तब्दीली क्या करी आपने? सुनिए, नई ऑडिशन छापा है फुरकान बुक डिपो लखनऊ से, जो छप के अभी निकली है, ये आज ही ऑडिशन निकला आपका छप के। ये हमारे सामने अभी नहीं आई, ठीक है ना? नहीं, आपके सामने आएगी ना, जब हम भेजेंगे। आप स्कैन लगा दें, आप स्कैन लगा दें। आप स्कैन लगाएंगे ना, पहले आप पुरानी आप स्कैन लगा दें यार, जो चीज हमारे सामने आई नहीं। क्यों तारी हो रही है गानी साहब? अल्लाह अकबर, लानतुल्लाह अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। मैं पढ़ दूं क्या? पहले आप स्कैन लगाएं। अरे हम स्कैन तो लगा देंगे। अरे लो, मैं दे ही देता हूँ यार, लगाएं। क्यों इसको टेंशन दे रहे हो? तभी तो नई इबारत पढ़ करके फिर आपको स्कैन लगाएंगे ना। नहीं, पहले आप इबारत स्कैन लगा दें। ठीक है, लीजिए, मैं दे रहा हूँ। मैं एक मिनट इबारत भी पढ़ के बताऊंगा, इनसे ही पढ़वाऊंगा। नहीं, पहले एक बार आप पढ़ दीजिए। क्या? एक मिनट, नूर भाई आपके पास किताब मौजूद है ना? जरा आप पढ़ के जरा बताइए। अरे मेरे पास सब कुछ है। मसरूफ हूँ यार इस वक्त। बस 1 मिनट साहब, आरिफ साहब। आप नूर भाई पढ़िए जी, 1 मिनट बस, इनका नाम निकाल के जरा इनको मैं दे दूँ। जनाब पहले स्कैन लगा देंगे। पहले स्कैन नहीं, बगैर स्कैन के बाद ही आपको स्कैन लगा देंगे भाई। चुप तो रहिए 2 मिनट। नहीं, पहले स्कैन लगाइए, फिर जो है बोल रहे हैं यार, खुदा की कसम, पहले जब नहीं बरेलियत की कसम पर भी हमें एतबार नहीं है, क्योंकि बरेलवी झूठी भी कसम खाता है। 2 मिनट में अगानी साहब, 2 मिनट रुकिए ना, खामोश। ये गधे कहीं के लीजिए जनाब, बिगाड़ता है। लीजिए जनाब। नाम क्या बिगाड़ा? आप हमारे आलिम को तुफैल चमची बुलाते हैं माज़अल्लाह, तो आपके लिए दुरुस्त है? अच्छा जाइए, अपने व्हाट्सएप में जाइए। तुफैल चमची बोलेंगे ना। अशफाक, अरे यार, इसको झगड़ा कहते हैं यार। मैं इस तरह की गुफ्तगू को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। ये लड़ाई झगड़े वाली बातें मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ यार। ओ आरिफ साहब, चल हट नूर हसन, तेरे पर्सनल पहुंच गया सारा मामला, जाके पढ़ उसे जल्दी से। हट जा, अब ये भागेगा देख। अरे तेरे अंदर क्या औकात है जो मुझे भगा सके? अच्छा, पर्सनल में आओ। मसरूफ होने के बावजूद भी तुझसे बात कर रहा हूँ। मसरूफ अच्छा, तो काम की बात करना, फालतू बातें क्यों कर रहा है? क्या काम की बातें कर, फालतू बातें क्यों कर रहा है? काम की बातें कर। स्कैन लगा दिया, पहुंच ना पर्सनल में जाके, व्हाट्सएप में पहुंच। व्हाट्सएप देखो, अभी ऑफलाइन है, तू भागना मत कॉल काट के, ठीक है? अबे फालतू के बात मत कर। अरे हाँ, व्हाट्सएप में जा जल्दी से। खामोश रहे, खामोश रहे। तेरा बुखार छुड़ाता हूँ 2 मिनट में। नूर भाई, हाँ जरा एक बार इबारत पढ़ दीजिए। हाँ, अभी पढ़ूंगा, पहले इसे पढ़वाऊंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। मैंने तो पढ़ दिया ना शुरू में, मैं अब क्यों पढ़ूं? हजरत, अभी तक मेरी आदत को ही नहीं जाने मैं करता क्या हूँ। अबे खामोश बैठ यार, खामोश बैठ। पढ़ के सुनाओ। यहाँ पे बात करने आए हो क्या? अपनी पर्सनल बात है, हम अपनी बात करें, तुम पढ़ो ना। गानी साहब क्यों परेशान हो रहे हो? फिर नाम बिगाड़ा तूने। अरे यार पढ़ यार, माफी मांग, जल्दी से माफी मांग। अब भागेगा ये अब भागेगा। अच्छा सुन, हाँ ठीक है, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ, ठीक है? सुन, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। तेरे तुफैल चमची को अरे हजरत, इससे फालतू बातें बिल्कुल मत करो, इससे कहो ये हवाला पढ़ो। कहता है इबारत वो क्यों कहता है? इबारत पढ़। मैं इबारत पढ़ूं? हाँ, मैं, मेरी क्या गर्ज है रे? अबे तुझे भेजा ना, अब तू पढ़ने भी नहीं दे रहा। अब तू पढ़, क्या कहना चाहता है? देखिए सामने इस वाले को पढ़िए। इबारत भेजो, अब भेजता तो पढ़। ये वाला तुम पढ़ो ना, मैं देखता हूँ। नंबर 18 नहीं, तुमको पढ़ना होगा। ये देखिए, दोनों हवाले मैंने आपको स्कैन शॉट करके दे दिए, ताकि आपको देखने में परेशानी ना पड़े। चलो पढ़ो जल्दी पढ़ो। ये इबारत में तब्दीली क्यों की, जब ये इबारत दुरुस्त थी आपकी नजर में? चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सवाल बाद में, पहले सवाल बाद में करो, ये पहले इबारत पे आओ। सुनिए इबारत। अरे यार खामोश बैठ यार, जब बात सुनने की सलाहियत नहीं तो यार मैं भी तो कह रहा था, ये इतनी बार हिफ्जुल ईमान पे मुझसे बहस कर क्यों रहा है? पागल मजनू पूरा काम। मैंने कहा यार, ये मौलाना अशफाक साहब के पास भी भागा, मैंने उनके ऑडियो पे यही सुना कि मौलाना साहब में तुम सुनिए तो बापों ने ये नहीं चाहिए करें।
दोनों कुत्ते भौंक रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन जो है संजीदगी के साथ बात ही नहीं करते हैं। हाँ तो इबारत पढ़ ना। अच्छा तू एक हफ्ते से क्यों बौखलाया फिर रहा था इतनी इबारत करे? अब पढ़ने दो, खामोश रहो। हाँ चल नूर भाई पढ़ो पहले। अरे नहीं वही पढ़ेगा यार, वही पढ़ेगा। नहीं तू पढ़ो ना, पढ़ो तू मैं पढ़ूं? थोड़ी है। हाँ पढ़ो। अच्छा पहली वाली किताब का पढ़ूं कि अब वाली किताब का पढ़ूं? अरे इसी वाली किताब से पढ़ो, पहली वाली का तो मालूम है, इसी से पढ़ो। अच्छा ठीक है। देखिए अब इस किताब में ये लिखा गया है फिर ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर आलिमुल गैब का इतलाक किया जाना। आलिमुल गैब का अल्फाज यहाँ इस्तेमाल किया इन लोगों ने। पहले था, सुनिए मैं बताता हूँ, पहले लिखा गया था कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना। अब है आलिमुल गैब का इतलाक किया जाना। आलिमुल गैब लफ्ज यहाँ जोड़ा गया है माज़अल्लाह। अच्छा हाँ, अगर बकौल ज़ैद सही हो तो समझे दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ इल्म गैबिया मुराद है, इल्म गैब नहीं उलूम गैबिया है, हाँ अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तखसीस है। वहाँ है कि ऐसा इल्म गैब तो माज़अल्लाह ज़ैद व अमर बल्कि हर सभी व मजनून बल्कि जमी हैवानात बल्कि बहाइम के लिए भी हासिल है। यहाँ है कि आप यहाँ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तखसीस है। इसके बाद आया कि मुतलक बाज़ उलूम गैबिया, समझे, मुतलक बाज़ उलूम गैबिया तो गैर अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भी हासिल हैं। तो चाहिए सुनिए तो चाहिए कि सबको आलिमुल गैब कहा जाए। फिर अगर ज़ैद इसका इल्तिजाम कर ले कि हाँ मैं सबको आलिमुल गैब कहूंगा तो फिर इल्म गैब को मिन जुमला कमालाते नबविया शुमार क्यों किया जाता है? चलो अगवानी साहब उसका जवाब। बहरहाल मेरा आगे का मतलब नहीं है। इन्होंने, मेरा एतराज ये है कि इन्होंने जानवरों का नाम हटा के, बच्चों का नाम हटा के सिर्फ ये लिखा कि गैर अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भी हासिल है। यानी इन्होंने समझा कि यार ये जुमला बड़ा खतरनाक है, बड़ा सख्त है। चिमगोदड़ तू नाम कैसे बिगाड़ता? कई मर्तबा मैंने तुझे तंबीह की है कि नाम मत बिगाड़, लेकिन तू हरामी बंद से तो बात नहीं आता है। आरिफ साहब मैंने आपके कहने के देखिए एक बोल चाहे नूर हसन ड्राइवर बोल ले या ये कालिया बोले। चलो नूर भाई बात कर लो इससे। जी जनाब, देखिए मैं अदब और एहतराम के साथ आपसे बात करना चाहता हूँ। जी अदब और एहतराम ही के साथ बात करो, वरना ऐसे लोगों को मैं मुंह भी नहीं लगाता हूँ जो बदतमीजी करते हैं। तू बदतमीजी करे जाते है ना। अबे क्या बदतमीजी मैंने की है? चलिए हजरत बातों में इसका टाइम बर्बाद ना करें। बोले तेरे पास सर्टिफिकेट है ना? अबे तुफेल चमची को तेरा अशफाक रजा खानी चमची बोलता है। साबित कर, 1 लाख का इनाम दूंगा। मैं साबित करूंगा। अरे यार आपस का झगड़ा क्यों हमारे यहाँ, मतलब हमारा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? हाँ चलो जल्दी बोलो। नूर हसन बोल, क्या एतराज है? एतराज मेरा यही है कि देखिए एक तरफ इल्म गैब का हुक्म किया जाना, दूसरी तरफ आलिमुल गैब का इतलाक किया जाना, आलिमुल गैब का अल्फाज इस्तेमाल किया, यहाँ मेरा जो है एतराज है। दूसरा एतराज मेरा ये है कि यहाँ पर ये लिया गया कि मुतलक बाज़ उलूम गैबिया, यहाँ मुतलक लिया उसके बाद कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तखसीस है। इसके बाद उस वाली किताब में, पहली वाली किताब में लिखा है कि ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अमर बल्कि हर सभी व मजनून बल्कि जमी हैवानात के लिए भी हासिल है, क्योंकि वहाँ जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों से तशबीह दी जा रही थी। यहाँ उस जुमले को हटाकर सिर्फ ये लिखा गया कि मुतलक बाज़ उलूम गैबिया तो गैर अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भी हासिल है। जी हाँ, तरमीम की गई, इस किताब में चेंजिंग की गई, जुमलों को बदला गया। यानी तुमने भी समझ लिया कि हाँ यार वाकई ये जुमले बड़े खतरनाक है, बड़े सख्त हैं। अब सुनो मेरी बात सुनो। तो तौबा कब करोगे? अब सुनो, अब मेरी बात सुनो। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछता नूर हसन कि अगर किताब से इबारत को निकाल दिया जाए या उसमें तरमीम कर दी जाए तो क्या वो गुस्ताखी बनती है? जनाब गुस्ताखी नहीं, आपने उसको गुस्ताखी मान लिया। गुस्ताखी, अरे पागल हो कौन हो? पूछता हूँ, यानी आपने भी मान लिया कि हाँ वो वाकई गुस्ताखी है, बड़ी सख्त इबारत है। ऐसी इबारत दिखा सकता हूँ जिसमें तरमीम की गई है, जिसमें जो है इबारत को हटा ही दिया गया है। आप पे फतवा भी दिखाना पड़ेगा। आप सुन तो लीजिए जनाब, आप सुन तो लीजिए। अरे हजरत हाँ, अरे सुनो तो। मैं कहता हूँ कि अगर हमारी किताब में तरमीम की गई है, अगर अरे सुनो इस पर तो बहस मुबाहिसा हुआ है, हमने बहस मुबाहिसा नहीं किया। अगर कोई गलती से कोई बात आ गई, सुनो ना,
अब सुनो, मेरी बारी आई तो अब मेरी बात सुनो ना। मैं यही कह रहा हूँ कि जैसा कि आपने कहा इसमें तरमीम की गई है, अब गुस्ताखी की तभी तो तरमीम की गई, आपका कहना है, ठीक है। तो यही मैं कहता हूँ, यही उसूल मैं आप पर फिट करता हूँ कि मैं आपकी किताब से ऐसी इबारत पेश करता हूँ जो पहले एडिशन में कुछ और थी और अब की जो एडिशन है उसमें कुछ और इबारत है। एक मिनट, आप मेरी यहाँ बात सुनिए, एक मिनट सुनते जाइए। पहले तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, मैं तुम्हें इस बात का पहले यहाँ जवाब देना चाहता हूँ। खामोश रहो ना, पहले खामोश रहो, मेरी बात। अरे लोगों को फिर बात समझ में कैसे आएगी? हमने उस पर तुमसे वैसे मुबाहिसा किया, हमारे किस आलिम ने, सुनिए ना, अगर कोई प्रेस की वजह से कोई इबारत गलत हो गई है तो मैं फोन रखूंगा। देवबंदियों ने मान लिया, इन्होंने मान लिया, मेरी बात तो सुन ही नहीं रहा है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अगर उसूल है यही, अगर इनके घर का उसूल है कि जो है इबारत, देखिए तुमने इस पर बहस मुबाहिसे किए हैं, मुनाजरे किए हैं, इस इबारत पे निकाल दिया जाए तो इनके नजदीक गुस्ताखी बनती है। अरे माशाल्लाह, हमने कहा इस बात को, शैतान झूठ बोल रहा है। हम रिकॉर्डिंग के आखिर में ऐसी इबारत बरेलियों के लगाएंगे जिनमें इन्होंने तरमीम भी किया जो सिरे से। अरे तो उससे हमने मुनाजरे कब किए हैं तुमसे? अगर कोई गलती हो गई है प्रेस की वजह से या किसी और की वजह से तो हमने उस पर तुमसे बहस मुबाहिसा कहाँ किया है? मुनाजरा किया है तुमने। अरे हलाली कौन है, हरामी कौन, मैं साबित करता हूँ। हरामी तो भानवी है, क्योंकि वो अपने बाप की भी औलाद नहीं है, वो तो ये मोहतरम सामने उसका बाप तो नामर्द हो गया था। है लेकिन जो है मेरी मुसलमानों देख लीजिए। अच्छा ऐसा करो, इसको बात की बात नहीं है, इसको तो टाइम नहीं था, लेकिन ये मानते नहीं, ये उसको आते नहीं। जो शुरू से लड़ती हुई आ रही है कि इबारत को देवबंदियों ने मान लिया, अच्छा और इबारत को बदल दिया, और ये हम हरामखोर जवाब नहीं दे रहा हमारे आलिमों के पास। इबारत को लेकर यही उसूल से, और अब ये जो तुम्हारी अबे हवाली जो गुस्ताखी को बोल रहे थे तुम्हारे उसूल से, और बात तो करो, ये खींचे एक इबारत पर चल, कौन सी इबारत बदली है पढ़ उसको। पहले ये उसूल फिट करो, पहले ये उसूल मानो, अब का फतवा लगाओ। अबे गधे लेते बता है, तू उसको घूमना ले 4 दिन से हमारा। अरे मैं इसे समझा दूं, संजीदगी के। देखिए जनाब, आप इतना बौखलाइए नहीं, मैंने आपको क्यों कॉल किया है, आप मेरी बात सुन लीजिए। इसको मालूम है इसके बाद अल्लाह, यही उसूल से तुम्हारी हजारों कुतुब से मैं। अरे यार पहले हमारी बात तो सुन ले पागल आदमी, अल्लाह ताला जब छीन लेता तो अकले छीन लेता है। एक कुत्ता भौंकना बंद कर दे, एक कुत्ता भौंकना बंद कर दे। अबे तुझे तो हम छोड़ेंगे। अरे बस पता चल गया भाईजान, बंद कर दे, इसका फोन काटो, पता चल गया बस। बंद करे, एक बोले तभी तो चड्डी उतारेंगे। इसका फोन काटो, बस पता चल गया इसकी इल्मी सलाहियत क्या है। 4 दिन से तू यार मैं सभी तो कह रहा हूँ यार, ये हिब्जुल ईमान में मुझसे बात करने आया क्यों? अगर यही हिब्जुल ईमान की इबारत बरेलियों के इससे पहले भी हिब्जुल ईमान पे इसकी जो है मैंने पिटाई की है हिफ्जुल ईमान की, तो यही इबारत बरेलियों के मुजद्दिद ने, मौलवी अहमद रजा खन्नास ने, माशाअल्लाह, देखिए गाली बकने लगा मुसलमानों। मौलाना अब्दुल, इस हरामी की जरा खैर खबर ले लीजिए, नंबर डालेंगे इसका। यही हिफ्जुल ईमान की इबारत मौलवी अहमद रजा बरेलवी ने अपने लगोटिया यार, अपने दोस्त अब्दुल बारी फिरंगी महली के सामने पेश किया था, ठीक है। वो जब इबारत पेश की थी तो उस टाइम कुफर का फतवा नहीं लगा था, जाहिल की औलाद। अरे नहीं, वो उसके नीचे भी उनका खुलासा है, मैं दूंगा इसको जवाब। उस किताब के नीचे भी उसका खुलासा है। हराम जब ये भागा था अजगर देवबंदी भागा था उसी पे, ठीक है। अब सुन ले, भाई तो मुबाहिसा कर रहा था, मैंने कहा नीचे नहीं देखेगा ये क्या है। पहले इबारत पर हमारी कौन सी कुफरी इबारत बदली गई, उसका नाम बता, उसका फतवा दिखा, चल पढ़। हाँ अब सुन ले, और उस पर बहस मुबाहिसा दिखा के हमने उस पर बहस मुबाहिसा किया हो। खामोश हो जाओ कुत्तों, खामोश हो जाओ। ऐसा करो या बदतमीजी करेगा, इसको गुफ्तगू नहीं कहते लोग। कट करो इसका कॉल, कॉल कट करो, दोनों बोल रहे हैं, कॉल कट करो यार जमशेद भाई, कॉल कट करो उसका, बस हो गया, कॉल कट करो। जमशेद भाई कॉल कट करो ना। एक खामोश हो जाए, अब एक खामोश हो जाए। अभी तो तेरे पास टाइम नहीं था, हरवानी सारे झूठे। अबे अहमद रजा खन्नास के गाली बकेगा, मैं कह रहा हूँ ना कॉल कट करो। मानने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं वक्त जवाब मरम्मत करता हूँ, उसको जवाब तुम्हारी वक्त में निकालता हूँ। 4 दिन से हमारे आलिम के पास भी किताब लेके घूम रहा था, आलिम तो अहमद रजा खन्नास को काफिर मान लिए कि इससे पहले जो मैंने पिटाई कर दी थी। देखो ये बदतमीजी करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, कॉल काटो इसका। देखिए सामाइन,
ये 4-5 दिन से हमारे आलिमों के पास हिफ्जुल ईमान पे बात करने के लिए जा रहा है और ये बार बार पुरानी ऑडिशन पे बात करता है कि ये इबारत बिल्कुल दुरुस्त है, इससे कुफर का फतवा गलत लगा। लेकिन आज जो इनका नया ऑडिशन छपा है लखनऊ में, ठीक है ना, वहां से जो हिफ्जुल ईमान की इबारत को बदला गया, इनके मुफ्तियों ने इजमा किया है, इनके मुफ्तियों के इजमा से ये इबारत बदली गई। अब इससे जब हमने इबारत भेज दी, अब इससे पढ़वा रहे थे, पढ़ भी नहीं रहा है और इससे किस तरीके से भाग रहा है। मेरा चैलेंज है पूरे देवबंदियों को कि हमारी कोई ऐसी इबारत दिखाए जो हमने बदली हो तो इस पर कुफर का फतवा हो। वो बदली गई है तो या तो प्रेस की गलती से और बदली गई है, या तो उसके अंदर कोई ऐसी गलती प्रेस वालों ने की है इस वजह से बदली गई है, नहीं तो हम अपनी इबारत को नहीं बदलते। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हगवानी अपने बनाए हुए उसूल से खुद काफिर भी साबित हुआ, मुशरिक भी साबित हुआ। ये इस इबारत को ले लेके घूम रहा था 5 दिन से। आज हमने सामने इसको पेश किया इसके सामने, तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ बरेलवी के नजदीक ये इबारत कुफरिया थी और देवबंदियों ने भी इसको तहरीफ करके इसको बदल के ये मान लिया कि ये इबारत कुफरिया थी। अशरफ अली थानवी को काफिर मानना पड़ेगा इनको कॉल कीजिए और इनकी बजाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हज़रात, नूर हसन रज़वी नेटवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास पहुंच सके और देवबंदियों का ओरिजिनल और बदनुमा चेहरा आपके सामने आ जाए। सुन्नी अंबिया इकराम की जिस कमाल को तस्लीम करते हैं, मानते हैं, वहाबी देवबंदी उसी कमाल को शिरक बताते हैं और अपने बुज़ुर्गों के लिए हर कमाल को तस्लीम करते हैं, अंबिया इकराम के कमाल को इनकार करते हैं। देखें इस वीडियो को।